Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well at your places. Myself, Vinay Kumar Shah from Shrijyoti Educational Group, Kota. Now, we are discussing about chapter 7, triangles in mathematics class 9. In first video, we discussed about the concurrency rule, ASA rule of concurrency, SAS rule of concurrency and AAS rule of concurrency based on exercise 7.1. Our deleted portion is inequalities in triangle. Exercise 7.4 is deleted in this session 2020-2021. Now start the properties of isosceles triangle is based on exercise 7.2. Now the statement of the theorem is angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. किसी isosceles triangle means its two sides are equal and its opposite angles are equal. Now it is called an isosceles triangle. Isosceles triangle की हमें प्रूव करना है कि if the angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal means यदि किसी isosceles triangle की opposite sides equal हैं तो हमें प्रूव करना है its opposite angles are also equal. Now first way to write given to prove this theorem. What is given? Triangle ABC is an isosceles triangle and AB is equals to AC. आपको प्रूव करना है एंगल B is equals to एंगल C, बट इससे पहले गिवन है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसके अपोजिट साइड AB और AC इक्वल है. टू प्रूव we have to prove its opposite angles are equal. इसके जो opposite angles हैं एंगल B और एंगल C ये इक्वल है. Now we have to prove angle ABC is equals to angle ACB. Now the theorem is very easy. इसको प्रूव करने के लिए एक हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट लेना पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन पार्ट इज we have to draw the angle bisector of angle A. एंगल A का हम एंगल बाइसेक्टर लेंगे which intersect BC at point D. पॉइंट D पर जाके BC पर जो है ये पॉइंट T पर टच करेगा. नाउ कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AD which बाइसेक्ट एंगल A. हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. अब हम प्रूफ पे आते हैं. नाउ इन दिस ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC we have to consider this two triangle ADB and triangle ADC. In these two triangles what we can say, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड और ये साइड इक्वल है. दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. AD इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो फिर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC बाय कंस्ट्रक्शन एंड AD इक्वल्स टू AD इज द कॉमन साइड. तो इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट वी कैन से AB इज इक्वल्स टू AC. This is given. Angle BAD is equals to angle DAC. We have to write by construction. By construction हमने जो है एंगल बाइसेक्टर AD लिया है जो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट AD इक्वल्स टू AD इज द कॉमन साइड. AD इक्वल्स टू AD क्या है, दोनों में कॉमन साइड है. तो व्हाट वी कैन से, it follows the rule side angle side. So two sides and its included angle are equal. Now by SAS rule these two triangles are
congruent. तो by SS rule what we can say, triangle ADB is congruent to triangle ADC. और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करेंगे तो बाय CPCT वी कैन से एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACB, और वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की यदि अपोजिट साइड्स इक्वल है, इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. नाउ इट्स converse of this theorem is, next is angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. नेक्स्ट थ्योरम इज कि यदि हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है इट्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल when its opposite angles are equal. यदि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी. नाउ दिस इज कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम. हम थ्योरम के कन्वर्स पे जाते हैं. थ्योरम का कन्वर्स इज इक्वल साइड of an isosceles triangle are equal when its opposite angles are equal. किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के यदि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. देन वी टू ड्रॉ द ट्राइंगल विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. दिस इज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Its opposite angles are equal. You have to given opposite angles are equal. This angle and this angle are equal, and we are taking its perpendicular angle bisector. हमने AD एक एंगल बाइसेक्टर लिया है विच इज परपेंडिकुलर टू BC. AD BC के परपेंडिकुलर है. गॉट इट? नाउ फर्स्ट, यस, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट्स इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC. गिवन हम लिख चुके हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की अपोजिट एंगल्स इक्वल है. एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, और हमें प्रूव करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है. नाउ अवर कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन करते हैं. दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इज परपेंडिकुलर टू BC. हमने एंगल A का एंगल बाइसेक्टर लिया है जो BC को परपेंडिकुलर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट D पर. तो ड्रॉ angle bisector of angle A which is perpendicular to BC. BC के परपेंडिकुलर. अब हम प्रूफ करते हैं कि हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है. इक्वल प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ पे आते हैं. नाउ वी आर टेकिंग प्रूफ, और प्रूफ पे अगर देखें, नाउ प्रूफ वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC. हम ट्राइंगल ADB और ADC को कंसीडर कर रहे हैं. नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स हमें क्या गिवन है? एंगल B एंगल C के इक्वल है. By the construction, this angle and this angle is 90 degree, and this is the common side. What we can say, two angle and its corresponding side, not included side. Included होता तो हम A से rule use करते, but it is corresponding side. Now by A's rule of congruency, these two triangles are congruent. So in these two triangles, what we can say,
एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, और ऑल्सो वी कैन से दिस इज एंगल ए बी डी। इसको हम ए बी सी भी कह सकते हैं और ए बी डी भी कह सकते हैं, एंगल ए सी बी भी कह सकते हैं और ए सी डी भी कह सकते हैं। तो ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी के है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री है। बाय कंस्ट्रक्शन ये तो हमें गिवन था, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है, एंड AD इक्वल्स टू AD इज द कॉमन साइड, AD इक्वल्स टू AD हमारी कॉमन साइड है। तो व्हाट वी कैन से, एंगल साइड बाय AS रूल, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और ये जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT its corresponding parts are equal, then we can say by CPCT AB equals to AC. Now by CPCT AB is equals to AC. Now prove the concept कि if the opposite angles of an isosceles triangle are equal, then its opposite sides are also equal. Got it? Now these two theorems based on exercise 7.2. Then we are taking some example of exercise 7.2. Yes. Question number 2 of exercise 7.2. Question number 2 says in triangle ABC, AD is a perpendicular bisector of BC. आपको given है triangle ABC में question number 2, in triangle ABC, you have to given triangle ABC. In this triangle ABC, AD is a perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector का मतलब perpendicular भी है और bisect भी कर रहा है, तो given लिखे इसमें in triangle ABC AD is perpendicular bisector of BC। जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। गॉट इट? नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव द कंडीशन AB is equals to AC, means the pair of opposite sides are equal। तो प्रूफ पे आए, और अगर हम यहां पे देखें तो यू आर टेकिंग द कंडीशन दिस इज टू ट्राइंगल्स ADB एंड ट्राइंगल ADC। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट वी कैन से, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मींस BD इज इक्वल्स टू DC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या काम है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD DC के इक्वल है। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 90 डिग्री एंड AD इक्वल्स टू AD इज द कॉमन साइड। तो टू साइड एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, देन बाय SS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वे टू राइट व्हाट इज दिस इज BD इक्वल्स टू DC, you have to given in question, angle ADB is equals to angle ADC, this is 90 degree, and AD equals to AD is the common side. So this follows the rule side angle side. Now by SS rule what we can say, triangle ADB is congruent to triangle ADC, these two triangles are congruent, then by CPCT AB is equals to AC। now prove the condition, हमने प्रूव कर दिया by CPCT कि किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is two triangles ABC
and DBC are two isosceles triangle are on the common base BC. Common base BC पर दो triangles आपको दे रखे. Now we have to draw the figure according to question. One triangle is this and another is this. And this is angle, this is vertex A, B, C and this is D. And you have to prove, आपको prove करना है angle ABD is equals to angle ACD. और जब ये isosceles triangle है तो इनके opposite sides के pairs क्या होंगे? Equal होंगे. Got it? Now yes, given in this question triangle ABC and triangle BDC are an isosceles triangle on the common base BC. You have to given triangle ABC and triangle BCD are isosceles triangle on the common base BC. कॉमन बेस BC पर ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं. टू प्रूव करना है हमें एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD. ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ पे आए तो वी हैव टू कंसीडर इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी कैन से एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB. किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की अभी जस्ट थ्योरम पढ़ाई है मैंने. आइसोसेलेस ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन ट्राइंगल BCD, अगर इस ट्राइंगल BCD को कंसीडर करें तो इट्स ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DCB बिकॉज DB इक्वल्स टू DC एंड ऑल्सो वी हैव टू यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी. नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2. अब अगर मैं एंगल ABC में DBC को ऐड करता हूं, इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे, इट इज कंप्लीट एंगल ABD. और इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे, दिस इज कंप्लीट एंगल ACD. तो वी हैव टू ऐड दिस टू इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर दें. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं. एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB. और फिगर में देख सकते हैं एंगल ABC में अगर हमने DBC को ऐड किया तो इट इज कंप्लीट एंगल ABD. और ACB में अगर DCB को ऐड कर रहे हैं दिस इज कंप्लीट एंगल ACD. Now prove the concept of the question. Angle ABD is equals to angle ACD. Now next question based on exercise 7.2. Question is question number 4. Question number 4 of exercise 7.2. Question is triangle ABC is a triangle in which altitude B and CF of sides AC and AB are equal. Yes, here to given triangle ABC. Triangle ABC आपको given है. In this triangle B and CF, BE and CF are altitude. Altitude means which is perpendicular to the opposite side of the triangle. Here to given BE and CF altitude side AC and AB are equal. Show that. Given में लिखते हैं in triangle ABC BE and CF are altitudes
altitudes and BE is equals to CF। क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC में हमने BE और CF दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं और ये लेंथ्स में इक्वल है। प्रूव करना है, टू प्रूव व्हाट इज ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF। ट्राइंगल ABE और ACF congruent है और सेकंड प्रूव करना है AB equals to AC। एंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर हम यहाँ दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करें, एक ट्राइंगल तो है ABE, दिस ट्राइंगल ABE एंड दिस ट्राइंगल ACF। वी हैव टू कंसीडर दिस टू ट्राइंगल्स। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करते हैं तो व्हाट वी कैन से, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है। एंगल A इज द कॉमन एंगल ऑफ ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। गॉट इट? इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल AEB एंड AFC equals to 90 degree and you have to already given BE is equals to CF। तो टू एंगल but it's not included side, its corresponding side is equal by AS rule, these two triangles are congruent। और जब ये congruent हो गया तो ये ओवरलैप कर जाएंगे और ओवरलैप करते ही बाय CPCT AB और ACB क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी आर टेकिंग प्रूफ पे आए तो वी कैन से एंगल BAE equals to angle CAF। This angle is common in these two triangles। We have to consider triangle ABE and triangle ACF। हमने ट्राइंगल ABE और ACF कंसीडर किया। BAE जो है वो CAF के इक्वल है। एंगल BEA या एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, दिस इज 90 डिग्री एंड BE इज इक्वल्स टू CF गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि BE और CF जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल है। तो व्हाट वी कैन से, इट फॉलोज द AAS रूल, एंगल साइड। तो बाय AAS रूल ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। एंड सेकंड पार्ट बाय CPCT चैप्टर 7 में 7.1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन by CPCT its corresponding parts of congruent triangles are equal। तो by CPCT we can say AB is equals to AC and second part is proved। Clear all of you? I hope you are doing practice of these questions based on exercise 7.2 isosceles triangle property। Thank you so much for your contribution।